heartily welcomed to my YouTube channel Eternal Bliss. Please subscribe to this channel and press bell icon so as to get all the videos providing gems of knowledge. Today I am going to teach you the first lesson, first flight of Standard 10. The name of the first lesson is A Letter to God. The story of this lesson has been written by G.L. Fuentes. The full name of G.L. Fuentes was Gregorio Lopez y Fuentes. He was a Mexican novelist, poet and journalist. He was one of the leading writers of the Mexican Revolution. He was born on 17th November 1895 at Veracruz in Mexico. He died on 10th December 1966 in Mexico City. A Letter to God is a story of faith in God. It is believed that faith can move mountains. Yes, my dear students, it is rightly said that if you believe in you, if you have faith that you can succeed in your life, you can. But if you are lacking of faith in you, it is not possible for you to get success in any walk of life. But one question arises here as to what should we put our faith in? This is the question the story asks us with a view to getting an answer. In this story, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो इस कहानी में एक किसान है जो गॉड को एक पत्र लिखता है जब उसके फसल नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. In the letter, he had asked for 100 pesos. Pesos is a unit of money. It is a currency of Mexico, Cuba, Argentina, these countries. इस पत्र में लेंचो गॉड से 100 पेसोज की मांग करता है. Now the questions that you have to deal with while going through the story are: Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या ईश्वर उन्हें पैसे भेजते हैं? This story has 3 parts. The first part of the story goes like this. The house, the only one house in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. घर जो समूचे वैली में एकमात्र घर था, वह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित था और फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से कोई भी घाटी में बह रही नदी को देख सकता था, राइप कॉर्न फील्ड को देख सकता था जिसके फूल डॉट्स के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो हमेशा यह अच्छी फसल होने का यह विश्वास दिलाता था कि अच्छी फसल निश्चित रूप से उपजेगी, होगी. अच्छी फसल अच्छी उपज होने को आश्वस्त करता था. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जरूरत थी तो केवल
एक डाउनपॉर की, डाउनपॉर मीन्स अ हैवी रेनफॉल, एक डाउनपॉर की जरूरत थी। और एटलीस्ट ए शॉवर, शॉवर मीन्स ए लाइट रेन। एटलीस्ट एक फ्रेज है जिसका अर्थ है कम से कम। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह के पूरे समय लेंचो जो अपने खेतों को इंटीमेटली, अच्छी प्रकार से, वेरी क्लोजली, इंटीमेटली मीन्स हैविंग डिटेल्ड नॉलेज। लेंचो को अपने खेतों के बारे में पूरी जानकारी थी। had done nothing else but see the sky towards the northeast, वह सुबह के पूरे समय नॉर्थ ईस्ट के तरफ आकाश को ही देखते रहता था। Now we are really going to get some water women, उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम सचमुच, अब हमारे खेत को पानी मिलेगा, अब वर्षा होगी, यह उसने अपनी पत्नी से कहा। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसकी पत्नी जो सपर बना रही थी, सपर मीन्स एन इवनिंग मील, एन इवनिंग मील, दिन में जो लास्ट में जो सबसे अंत में जो मील हम लोग लेते हैं उसे सपर कहते हैं। सुबह के समय जो खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर के समय जो मील लेते हैं उसको लंच बोलते हैं। और शाम के समय स्नैक्स आदि कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसे सपर बोलते हैं। और फिर रात को जो खाना खाते हैं उसे डिनर बोलते हैं। कभी कभी अगर हैवी हो तो वह डिनर का भी काम कर सकता है। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से हमें हमारे खेत को पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them all come for dinner, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के नज़दीक ही खेल रहे थे और उस समय तक खेलते रहे जब तक कि उसकी लेंचो की पत्नी ने उसे डिनर के लिए बुलाया ना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड big drops of rain began to fall. It was during the meal, खाना खाने के दौरान ही just as, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जो अनुमान लगाया था उसके अनुमान के अनुरूप ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast डायरेक्शन से बादल का ह्यूज विशाल पहाड़ खेत की ओर आता हुआ लेंचो की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता था। The air was fresh, हवा ताजी थी, हवा बह रही थी। And sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और लेंचो घर से बाहर निकला उस वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। अपने शरीर पर उस वर्षा की बूंदों से जो सुखद एहसास की अनुभूति होती, इसका आनंद लेने के लिए वह घर से बाहर निकला। And when he returned, he exclaimed, और जब वह वापस लौटा उसने खुशी पूर्वक उत्साहित होकर कहा, These are not raindrops falling from the sky. ये रेन ड्रॉप्स
नहीं है जो आकाश से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बिग ड्रॉप्स है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, ये 10 सेंट पीसेज, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं ये 5 लिटिल वंस आर 5, और वो 5 सेंट पीसेज है। सेंट, 1 सेंट इज इक्वल टू 1/100 और 100 cents is equal to $1. Cent is also a very small unit of money. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. सेल्फ सेटिस्फाइड होकर, संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने राइप कॉर्न और उसके फ्लावर्स को ऐसा माना कि वे वर्षा की परत से ढके हुए हैं। Here regarded, to regard means to look upon something with a certain attitude. खास, किसी खास मनोदशा के कारण किसी चीज को कुछ खास समझना, यहाँ पर रिगार्डेड मीन्स, रिगार्ड मीन्स यही होगा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई और वर्षा के साथ साथ लार्ज hailstones, hailstone means lumps of ice, lumps of ice means ओला वृष्टि, ओला, ये बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ओले वो न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे दिखाई पड़ते थे, के सदृश दिखाई पड़ते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, और लड़के जो घर के अंदर थे वे वर्षा में वर्षा का आनंद लेते हुए वो बाहर निकले और फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करना शुरू किया। वो फ्रोजन पर्ल्स को, जो हेल स्टोन्स था, उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर निकले, दौड़ते हुए निकले। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा, अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह हेलस्टोन्स का गिरना जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यह समय निकल जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह समय, हेलस्टोन्स का गिरना ये समय शीघ्र ही नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ये हेलस्टोन्स घरों पर, ऑन द हाउस, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी एरिया में, द कॉर्नफील्ड, इन द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, ये वर्षा के रूप में ये बरसते रहे, गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो था वह बिल्कुल वाइट, सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एज इफ मीन्स मानो कि वह साल्ट से कवर्ड हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से, पौधे से फ्लावर्स, फूल झड़ गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का मन दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी चली गई थी, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा होकर, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा,
A plague of locusts would have left more than this. उसने कहा अपने लड़कों से कि अगर लोकस्ट्स जो इंसेक्ट्स है, अगर उसका भी प्रकोप हुआ होता तो इस खेत में वह उस प्रकोप से बहुत अधिक और कुछ इससे अधिक ही वह बच जाता, कुछ छोड़ दिया होता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। यह जो हेल स्टोन्स की जो वर्षा के रूप में जो हेल स्टोन्स आसमान से गिरकर फसल को जो बर्बाद कर दिया था, उसने घर में खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। वह रात बहुत ही दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। उसने कहा कि हमारा जो भी कार्य किया हुआ था उसका फल कुछ भी ना मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई है भी नहीं, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस साल भूखे ही रह जाएंगे। This was the first part of the story. Now, my dear students, some questions from this part, some questions from inside of part 1 will be given to you after this, at the end of the video, and you have to answer all the questions.